Hi, hello everyone. So today we are going to explore one of the most critical topic in corporate finance, that is capital budgeting. Okay. So this is the third session. Before this, we have already covered the time value of money. Basically, I have taken two sessions. Okay. Because when we will be doing capital budgeting, so there is a much use of time value of money in this chapter. Okay, so in this video we will cover basic introduction of capital budgeting. Okay, then the types of capital budgeting decisions, the techniques of capital budgeting like net present value, internal rate of return, payback period, and profitability index. And in the next session we will be discussing about some numerical questions or some practical problems that may be asked in different kind of question papers. Okay, different kind of exams. So without any delay, I'm going to start this session. Okay, so basically we are starting from the definition of capital budgeting. So as you can see on the screen, what is capital budgeting? So first, basically, remember one thing, that capital budgeting is to be used for the acquisition of long-term assets, or where the company is going to invest in a long-term project. Okay, so it is a process of planning and evaluating the potential expenditure or investment in a long-term assets, typically involving large sums of money. Okay, so कैपिटल बजटिंग में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम किसी लॉन्ग टर्म असेट्स को एक्वायर कर रहे हैं, या हम किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में हम बड़े फंड्स, लार्ज अमाउंट्स ऑफ फंड्स हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं. तो ऐसे केसेस में, क्योंकि एक तो लॉन्ग टर्म असेट्स है, हैवी अमाउंट्स हम यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमको पहले अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से इवेलुएट कर लेना है कि वेयर आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट, इज इट फिजिबल और इज इट प्रॉफिटेबल फॉर मी और नॉट. Okay, so the objective is to assess which projects or investment will generate the most favorable financial returns. ओके, जो अभी हम बात कर रहे थे, ये जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, जहां पर एक कंपनी अपने हैवी अमाउंट्स को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो वो असेस करना चाह रहे हैं कि जिन प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्ट करेंगे वो कंपनी के फेवर में है या नहीं है फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ द सेकेंड इज बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग. ठीक है, सो कैपिटल बजटिंग इज बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग. यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं to ensure that capital is allocated to projects that align with the organization strategic goal. Okay, and second is resource allocation. In resource allocation, ठीक है, it helps prioritize project based on profitability and risk. So in this basically in this topic, we have to allocate our resources on the basis of priority of the project, on the basis of profitability, on the basis of risk. Okay, so the main purpose of the company is profitability and to manage the risk. So accordingly we have to allocate the resources. And third is basically the risk management. We have already covered this point here. Okay, so we have to identify potential risk associated with the ये capital budgeting का importance है, इनमें help मिलती है हमें capital budgeting करने से. तो first basically it is a long term planning, second resource allocation, third risk management. So capital budgeting helps for the long term investment. ठीक है, ओके, सो कैपिटल बजटिंग हेल्प करता है किन किन चीज़ों में, बेसिकली हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में, रिसोर्स एलोकेशन करने में और रिस्क मैनेजमेंट करने में, कौन से प्रोजेक्ट्स में जहां पर हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं. थर्ड इज की कॉन्सेप्ट इन कैपिटल बजटिंग. सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो है कैश फ्लो एस्टिमेशन. इसमें आगे प्रॉब्लम भी आती है, कैश फ्लो एस्टिमेशन, कि जहां पर मैं अभी फंड इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वहां से मेरी कुछ एनुअल इनकम्स मेरी स्टार्ट होंगी, कुछ एनुअल कैश फ्लोज जनरेट होने स्टार्ट होंगे, तो उनका हमें एस्टिमेशन करना होगा कि वो एनुअल जो कैश फ्लो जनरेट होगा, ठीक है, जो कैश फ्लो जनरेट होगा एनुअली, वो कितने होंगे, उसके क्या एजम्पशंस होंगे, जिनके बेसिस पर आप बोल रहे हो कि मैं सपोज 10 लाख रुपए किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूं तो आने वाले 5 सालों में मेरे को 2.5 लाख रुपए मिलेगा. तो ये जो 2,50,000 यू आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, तो उसके एजम्पशंस क्या है, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क इन कैपिटल बजटिंग. इट इज सेकंड इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इट इज अ अपफ्रंट कॉस्ट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट. बेसिकली आप जो कोई भी प्रोजेक्ट में इनिशियली जो अपफ्रंट अमाउंट डालते हो,
ठीक है, या किसी असेट्स को जितने अमाउंट से आप खरीदते हो, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट. थर्ड वन इज ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, expected inflows and outflows from the project during its operational life. So we have already covered this point. Okay, and last is terminal cash flow. Terminal cash flow basically, suppose if we are acquiring an asset, so there may be some useful life of that asset, like this assets will run only for 10 years. So after 10 years, if there is any terminal value, if there is any residual value, or you can say if there is any scrap value, okay, so that the cash received from the project at the end of its useful life, including salvage value, it is a terminal value. तो हमको उसको भी आज के डेट पर लेके आना है. ठीक है, सो यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज होगा बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि ये हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग में, वो आज डिसीजन ले रहे हैं, और जो मेरे को इसके कैश फ्लोज जनरेट होंगे वो फ्यूचर में जनरेट होंगे. ठीक है, तो अगर मैं आज कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसके बेनिफिट्स मेरे को फ्यूचर में मिलेंगे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो फ्यूचर के बेनिफिट्स हैं उनको आज ही मेरे को फैच करना पड़ेगा आज के वैल्यू पर. ठीक है, so that I can compare the initial investment with the present value of future expected cash flows. If the future expected, if the benefits in the future, okay, that we have fetched at the present value, यानी जो फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज होंगे, आज जब उसको अपने प्रेजेंट वैल्यू पर ले आए, और वो जो प्रेजेंट वैल्यू है आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, इट मींस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज is greater than, is more than the initial investment, then you will have to accept that proposal, you will have to invest in that project, because it is in the favor of the company from the financial point of view. Okay, so time value of money में हमें क्या देखना होता है, for example यहाँ पे $1 today is worth more than $1 in the future due to its earning potential. Okay, because the money today we have and the money after 2-3 years, ठीक है, both have different value because of time. ठीक है, और वहाँ पर कई सारे फैक्टर होते हैं, इन्फ्लेशन, अनसर्टेनिटी, रिस्क एटसेट्रा, ये सब. So we have already covered this part in the last topic. Now basically the capital budgeting, let me just, ठीक है, capital budgeting techniques जिसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, but now challenges in capital budgeting. ठीक है, सो अभी हमने ये डिस्कस किया भी था. ठीक है, ये जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कैपिटल बजटिंग में, वो चैलेंज है एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज. ओके, वो चैलेंज है एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज. ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज. सो एक्यूरेट फॉरकास्टिंग कैन बी डिफिकल्ट ड्यू टू मार्केट अनसर्टेनिटीज. ठीक है, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कैपिटल बजटिंग में, वो कैश फ्लोज को एस्टिमेट करना ही होता है. देन बेसिकली सिलेक्टिंग द डिस्काउंटिंग रेट, जिस पर आप प्रेजेंट वैल्यू पर फैच करते हो. ठीक है, सिलेक्टिंग द डिस्काउंट रेट. सो चूजिंग एन एप्रोप्रिएट रेट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट एनपीवी एंड आईआरआर कैलकुलेशंस. सो फर्स्ट बेसिकली जहां पर चैलेंजेस आते हैं, हमें कैश फ्लो हम जो एस्टिमेट करते हैं वो किन एजम्पशंस के बेसिस पर कर रहे हैं, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन बिकॉज मार्केट अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ रिस्क इन्वॉल्वमेंट. ओके, देन थर्ड इज बेसिकली हैंडलिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, जिसके बारे में भी हम बात ही कर रहे थे. इंपोर्टिंग रिस्क इनटू कैपिटल बजटिंग मॉडल्स लाइक सेंसिटिविटी एनालिसिस और सिनेरियो एनालिसिस वी हैव टू डू. ओके, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सिनेरियो एनालिसिस. ठीक है, इन सिनेरियो एनालिसिस यू कैन से यहाँ पर हमको क्या करना होता है, यहाँ पर हमको डिफरेंट कंडीशंस देखनी होती है, डिफरेंट सिनेरियोज देखने होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल गुड सिनेरियो है तो क्या होगा, नॉर्मल सिनेरियो में क्या है, ठीक है, बैड सिनेरियो, बैड सिचुएशन है तो क्या है. तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हमें एनालिसिस करके देखना होता है, दैट इज सिनेरियो एनालिसिस. एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर मेरा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इनपुट में अगर कुछ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस इनपुट की वजह से मेरे आउटपुट पर कितना डिफरेंस आ रहा है. तो ये जो मैं डिफरेंट लेवल ऑफ बेसिकली कि 1% चेंज करने से मेरे पूरे आउटपुट पर कितना डिफरेंस आ रहा है, तो अलग अलग लेवल्स पर मैं अलग अलग आउटपुट देखना चाहता हूँ. ठीक है, दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस. तो दीज आर द 3 challenges in capital budgeting. Number 1 is estimating cash flows. ठीक है, second is selecting the discounting rate, third is handling uncertainty and risk. Okay, now decision making process की बात करें तो सबसे पहले we have to identify the project or the assets, in case of assets that we are going to acquire or in case of project where we are going to invest. Okay, so gather potential investment opportunity, बिकॉज डिसीजन मेकिंग की बात वहीं पर आएगी जहां पर आपके पास एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक से ज्यादा चॉइसेस हैं.
If there is no choice, then there is no question of decision making. Okay, so first we have to identify the project where we are going to invest. Then एनालिसिस करना है हमको, इवेलुएट यूजिंग द टेक्निक मेंशन लाइक एनपीवी आईआरआर, जो भी आपको टेक्निक सुटेबल लगे उसके हिसाब से कोई एक टेक्निक आपको ऑप्ट करनी है और उस प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना है जहां पर आपको इन्वेस्ट करने जा रहे हो. सो आफ्टर एनालिसिस पार्ट you will have to choose the best project on the basis of financial metrics and strategic fit. Okay, third, basically after project identification you will have to analyze. After analysis you will have to select, okay, the best project from the financial metrics point of view. And at last, monitoring. After project initiation, continuously assess performance against expectations. ठीक है, तो लास्ट में मॉनिटरिंग भी आपको करना है. ठीक है, so now which is very important topic that we are going to discuss, ठीक है, that is techniques of capital budgeting. Techniques of capital budgeting. Yeah, so I am writing some techniques. Number one is NPV. Okay, number two is payback period. Number three is IRR. Number fourth is profitability index. Okay, so this is net present value. ठीक है, this is payback period. This is internal rate of return, and this is profitability index. ठीक है, और यहाँ पर पेबैक पीरियड अभी बात करें हम, बाद में इसको दो टाइप के होते हैं, एक डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, एक नॉर्मल पेबैक पीरियड. ठीक है, सो इन केस ऑफ एनपीवी, ठीक है, एनपीवी. So what is NPV? Net present value. So net present value is basically the present value of cash inflows, future cash inflows, you can say future cash inflows minus initial investment. ठीक है, present value of future cash inflows minus initial investment. So I am taking one example here. For example, ठीक है, for example, suppose you are going to purchase a machine and the cost of machine is suppose 5 lakh rupees. Okay, 5 लाख रुपए का एक मशीन है. 5 लाख रुपए. Okay, the useful life of machine is 5 years. Okay, residual value, मशीन का एक रेजिडुअल वैल्यू भी दिया हुआ है, रेजिडुअल वैल्यू इज 50,000. ठीक है, एंड कुछ कैश फ्लोज दिए हुए हैं, कैश इनफ्लोज, जो कैश इनफ्लोज होंगे हमारे इस असेट से. ठीक है, वो फर्स्ट ईयर में कितना होगा, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर. ठीक है, आई एम एज्यूमिंग कि फर्स्ट ईयर में मेरा 1,50,000 मेरे को रिकवर होगा, सेकेंड ईयर में 1,80,000, थर्ड ईयर में से 1,20,000, फोर्थ ईयर में 80,000, फिफ्थ ईयर में 60,000. ठीक है, तो ये एक मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर कॉस्ट ऑफ मशीन 5 लाख रुपीज़ है, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, रेजिडुअल वैल्यू 50,000 है, कैश इनफ्लोज मेरे फर्स्ट ईयर में इतना मिलेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कैश इनफ्लोज दिए हुए. एंड एज्यूमिंग कि मेरा जो डिस्काउंटिंग रेट है, वो 10% है. ठीक है, जो डिस्काउंटिंग रेट है वो 10% है. तो ऐसे केस में मैं अगर एनपीवी कैलकुलेट करूंगा तो कैसे कैलकुलेट होगा. ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरे को ये तो पता है ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, अगर ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो मेरे को इसको कंपैरिजन करना है, किसके साथ में कंपैरिजन करना है, ये इसके प्रेजेंट वैल्यू के साथ में कंपैरिजन करना है. ठीक है, तो जस्ट एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम इसका, या एक काम करते हैं, इन सबके प्रेजेंट वैल्यू हम जितने भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड
वैल्यूज हैं उनका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, सो द फर्स्ट इज बेसिकली द ईयर 1 2 3 4 5, देन कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज 1,50,000, 1,80,000, 1,20,000, 80,000 एंड 60,000। तो ये प्लस एक हमें फिफ्थ ईयर में रेजिडुअल वैल्यू भी मिलेगा जो कि 50,000 है, प्लस 50,000 ये। तो इन फिफ्थ ईयर द टोटल विल बी 1,10,000। ओके, देन हम यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करेंगे एट 10% पर। ठीक है, अब आपको आ जाना चाहिए क्योंकि हम एक चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। सो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.909 फर्स्ट, then 0.826, 0.751, 0.683, 0.620। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, ठीक है, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इनके मल्टीप्लाई करने हैं। जस्ट मैं कैलकुलेटर ओपन कर लूँ। सो फर्स्ट 1,50,000 इंटू 0.909, दैट इज 1,36,350। ठीक है, देन हमको क्या करना है 0.826 इंटू 1,80,000, फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है। सो इट इज 1,48,680। ठीक है, देन 0.751 इंटू 1,20,000, 90,120। ठीक है, देन 0.683 इंटू 80,000, 54,640, and then 0.620 into 1,10,000, 68,200। इसका हम समेशन ले लेंगे। ठीक है, सो 68,200 प्लस 54,640 प्लस 90,120 प्लस 148,680 प्लस 136,350, that is 497,990। okay, so the value of future expected cash flows, the present value of future expected cash flows कितना है, ये है आपका present value of future expected cash inflows, जैसे 497,990। अभी हमको एनपीवी कैलकुलेट करना है, तो एनपीवी हमारा जो फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, 497,990 माइनस 5 लाख रुपीज। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है, जो एनपीवी आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एनपीवी आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। 497,990 माइनस 5 lakhs, 2010 minus, that is negative. So what we have to do if the NPV is negative, it means कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, इस मशीन को हम खरीदते हैं, ठीक है, तो इसके जो कैश इनफ्लोज हैं वो हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी कम है। The present value of cash inflows is less than the initial investment. So it means this is not in the favor of the company, ठीक है, from the financial point of view। ठीक है, तो इसका मतलब हमको ये मशीन नहीं खरीदनी चाहिए। तो यू कैन राइट हियर कंपनी शुड नॉट परचेज दिस मशीन। ओके, क्यों नहीं करना चाहिए, because NPV is negative। ओके, सो इसका मतलब अब यहाँ पर डिसीजन क्राइटेरिया भी आ सकते हैं। तो अगर एनपीवी है, एनपीवी आपने टेक्निक ऑप्ट करी है अपना बेसिकली किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करने के लिए, प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए। सो इफ एनपीवी इज पॉजिटिव देन एक्सेप्ट द प्रपोजल। ठीक है, इफ एनपीवी इज नेगेटिव देन रिजेक्ट द प्रपोजल, और इफ एनपीवी इज जीरो, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। सो बेसिकली यहाँ पर आपके ऊपर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहें नहीं करना चाहें, बट
as per basically some fundamental rules, so you should accept the proposal here also, because यहाँ पर एनपीवी जीरो आपका तब आता है जब अपना आप जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है या जिसको मिनिमम रेट बोलते हैं, अगर आप वो अचीव कर पा रहे हो, इसका मतलब आप एक कुछ परसेंटेज तो वहां से अर्न कर रहे हो, यानी कि आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं जा रहा है, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जो आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आप एक्सेप्ट द प्रपोजल कर सकते हैं, ठीक है। सो इन एनपीवी तीन यहाँ पर आपके डिसीजन क्राइटेरिया होंगे। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव एक्सेप्ट द प्रपोजल, इफ इट इज नेगेटिव देन रिजेक्ट द प्रपोजल, इफ एनपीवी इज जीरो देन एक्सेप्ट द प्रपोजल, ठीक है। यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रपोजल को, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एनपीवी, ओके। और इसी क्वेश्चन में हमको पे बैक पीरियड भी देख लेते हैं, ठीक है। पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड, अभी सिंपल वाला पे बैक पीरियड हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो दूसरा वाला है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है उसको कल हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो पे बैक पीरियड होता क्या है, ठीक है। तो पे बैक पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू रिकवर इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो पे बैक पीरियड इज द टाइम टेकन टू रिकवर इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। सो इन दिस क्वेश्चन if you want to calculate the payback period, so you can say I have invested 5 लाख रुपए in a project, 5 लाख रुपए यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सो ये 5 लाख रुपए मेरे को कितने टाइम में रिकवर होगा, ये 5 लाख रुपए मेरे को कितने टाइम में रिकवर होगा, तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि मेरे को 5 लाख रुपए कब कब रिकवर होंगे। तो मैं इसी का ना एक क्यूमुलेटिव निकाल लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, चलिए फिर से, ठीक है। 1 2 3 4 5 ईयर्स है हमारे, ओके, 5 ईयर्स है। तो 150 180 120 1,50,000 1,80,000 1,20,000 80,000 और 60,000, देन 80,000 और 60,000, ये मेरे कैश इनफ्लोज थे आने वाले 5 ईयर्स में। नाउ मेरे को इनका क्यूमुलेटिव निकालना है, ठीक है, क्यूमुलेटिव। सो पहला तो 1,50,000 ही रहेगा, ठीक है, देन 3,30,000, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, देन 4,50,000, ठीक है, देन 5,30,000, ओके, एंड देन 5,90,000। सो दीज आर द क्यूमुलेटिव वैल्यूज। अभी मेरे को देखना है कि मेरा जो 5 लाख रुपीज है, जो मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो किन 2 ईयर्स के बीच में रिकवर हो रहा है। तो मेरा 5 लाख यहाँ पर रिकवर हो रहा है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में। सो कैन आई से कि अप टू 3 ईयर या अप टू थर्ड ईयर कितना अमाउंट मेरा रिकवर हो गया, 4,50,000 रिकवर हो गया। हाउ मच टू बी रिकवर्ड, कितना और रिकवर करना है, ठीक है, 50,000 और रिकवर करना है। तो इन फोर्थ ईयर कितना रिकवर हुआ, इन द फोर्थ ईयर कितना रिकवर हुआ, इन द फोर्थ ईयर जो मेरा रिकवरी हुआ है दैट इज 80,000, ठीक है, दैट इज 80,000। तो कैन आई से ये जो 80,000 है ये 12 मंथ्स में रिकवर हुआ, ठीक है। मैं थोड़ा सा बिल्कुल बिना फॉर्मूला या उसके मैं आपको करा रहा हूँ। 4,50,000 अप टू थर्ड ईयर तक रिकवर हो गया, 5 लाख पूरा रिकवर करना है, 50,000 हमें और रिकवर करना है, और फोर्थ ईयर में हमारा 80,000 रिकवर हुआ था, ठीक है। सो कैन आई से ये 80,000 पूरे 12 मंथ्स में रिकवर हुआ, ठीक है। तो या तो ऐसे कर लीजिए इसको, या दूसरा एक सिंपल ये है कि आप सिंपल एक काम करिए, 50,000 आपको रिकवर करना है, ठीक है, 80,000 आपका रिकवर हुआ है, ठीक है। तो ये कितना है, 50,000 डिवाइड बाय 80,000, ठीक है, दैट इज 0.625। तो 3 साल तो पहले हो गए थे, ये अब आपको हो गए, तो इसका मतलब 3.625 ईयर्स में आपका 5 लाख रुपए रिकवर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब मंथ्स में इसको कैलकुलेट करना है, यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 12, तो आपका मंथ्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मंथ्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो अप्रॉक्स 7.5 मंथ्स आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि 80,000 को 12 से डिवाइड कर लो,
तो 80,000 को 12 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आएगा एक महीने में कितनी रिकवरी हो रही है, लगभग 6667 की रिकवरी हो रही है। रिकवरी कितनी करनी है, 50,000, एक महीने में 6667 की रिकवरी हो रही है, ठीक है, तो कितने मंथ में आपका 50,000 रिकवर हो जाएगा, 6667, तो सेम वही आ रहा है, दैट इज 7.5 मंथ्स। और अगर आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो अगेन 7.5, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दें 12 से, ठीक है, 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 0.625 दैट इज, ये सिंपल, इतना जाना ही नहीं है लॉन्ग में, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ, यू जस्ट डिवाइड बाय 50,000, ठीक है, बाय 80,000। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो दिस इज द कैपिटल बजटिंग एंड वी हैव डन टू टेक्निक, बेसिकली द net present value, second simple payback period. So in the next video we will be discussing about discounted payback period, internal rate of return and profitability index, and we will do some questions related to these topics also. And after that, one more topic that we will be discussing, that is cash flow after tax, how to calculate cash flow after tax, CFAT. And next is बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट होता है हमको वो भी देखना है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सो इन्वेस्टिंग करने से तो फर्स्ट बेसिकली